So we are a bit late. So I welcome all the members who have joined so far. And every month we are joining this webinar. And today's topic is again the capital gain on which this new budget is reflecting. So before going to the topic, we are summarizing the events we have covered so far in the last 1 month. That is, first of all, covered the empanelment process of members who have not been empaneled or left out in the list of SBI. So we have represented to the DGM and other officers regarding this matter, and we all the members shall be empaneled very soon. Secondly, on the national seminar, once again we are doing this national seminar is being organized by Kanpur chapter, and the probable date is 14th of December. Venue shall be intimated you later on, and all the activities are well settled. So before starting the event, I request IEI Chairman Mr. Mukesh Kumar ji to deliver his speech so that we may go ahead. Thank you, sir, for introducing myself for this IVA webinar. I welcome all members who are present here to attend this seminar, and I welcome today's speaker, Resham Shuklaji, a chartered accountant, and he will talk about capital gain taxation, because everybody knows this year the union budget, the finance minister she has announced that this capital gain has been increased from 10 to 12.5%, and real estate gain tax that has been reduced 20 to 12.5%. So now the taxation gain is uniformly 12.5%, as I understand till date. In that we will listen the today's invited speaker, and we will try to understand this subject in depth. As far as IVA activities are concerned, although SS Last was very active pursuing to some medical issue, he is not perfectly well and he is not attending these webinars. But the rest of the IVA team, everybody is contributing, and they are taking the responsibility to continue these activities. As Honorable Vice President of IVA announced that activity is planned on 14th of December. So I hope that IVA will do well again, just like last year they organized their activity. And as far as time is concerned, everybody should join webinar on time, because we have to understand the value of time. So I think I request to IVA authorities organize a webinar on value of time also sometime. So we must come, we must join these type of activities on time. So on behalf of IVA, on behalf of IEI, I would like to warm welcome you again, especially the today's guest speaker, Shri Suresh Shuklaji, who is well established chartered accountant, as well as he can understand the union budget very well. So I am also eager to listen in about the taxation. So thank you, sir. Thank you, Mukesh ji, for giving this warm lecture. Now I see that DC Shukla ji has joined the meeting, and I
I welcome DC Shukla ji Thank you. from. Namaskar Shukla ji. Namaskar. Namaskar. How are you? Namaskar. Now I ask my Vice President, IR Vice President Anand Singh ji to introduce DC Shukla ji. His brief resume. Anand ji. Okay, okay. We all welcome दिनेश शुक्ला जी और जो हमें उनके प्रोफेशन है he is senior chartered accountant and his social achievements are served as the president of Kanpur Chartered Accountant Society, served as a central India region of ICAI, served as the president of Kanpur Income Tax Bar Association. His JC's achievements are served as a June president of JCI India in 1997, served as a national vice president of JCI India and national treasurer, qualified as Excel trainer. He is also district governor of Rotary district B110 in 2020-21. District trainer in 2023-24, regular column writer, and he is also a motivational speaker. This is the brief introduction about Mr. Dinesh Shukla ji. Over to Mr. Thank you, Anand ji. Now I asked DC Shukla ji. He is no more unknown to anyone, and he is very well-known chartered accountant of Kanpur and as well as entire India. So I request Shukla ji to give his lecture on this capital gain. Okay, thank you. At the outset, I'm thankful to the association for giving me this opportunity and just another opportunity to meet some of my friends. Normally, we are meeting in fiscal also because this is the opportunity we are meeting technically and digitally also. Friends, this year's budget was very different because what is happening, the index was just going up and everybody was thinking that the economy is a very strong footing. It was also so. But there was a need of, because we are developing economy, the government was also exploring the opportunity how to get the money out of the investment also. So the capital gain has been a matter of great litigation in the past also. Earlier we had three regimes of the capital gains. Regime number one was, in case anybody is dealing in the capital market, then long-term capital gain. In case a person is holding that particular asset for 12 months or more, it was taken as a long-term asset, capital asset. In case any person who is dealing in the stock market and he is holding that capital asset for lesser than 12 months, then it was treated as a short term. But the thing was different in case of land and building. Earlier, you can remember 3 years back what had happened. Any capital asset in the form of the land and building, if a person is holding it for more than 24 months, it was treated as a long term. In case a person was just holding it for time less than 24 months, it was treated as short term. बहुत क्लियर मैं आपको बहुत बताऊं बिल्कुल अपनी भाषा में. इन केस यू आर डीलिंग इन कैपिटल मार्केट, आप जो भी कैपिटल मार्केट के एसेट हैं 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग टर्म. बहुत क्लियर. 12 महीने से कम तो आपकी जो है शॉर्ट टर्म. अब उसमें दूसरी चीज मैंने आई ऑलरेडी डेटेड कि 24 मंथ्स का था इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. इन केस ऑफ कोर्स अगर आप 24 महीने से पहले होल्ड करते थे, कम होल्ड करते थे, तो शॉर्ट टर्म उसके ऊपर गए और 24 महीने से ऊपर, देन इट वाज ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म. And other assets which were not covered in land and building and other assets which are not covered in the capital market assets, they were उनके केस में क्या, there was a system of 36 months. If a person was holding money in case of gold, earlier it was in case a person is holding for more than 36 months, then it was treated as a long term.
In case a person was holding for lesser than 36 months, it was treated as a short term. So three regimes were working. Three regimes. Now these three regimes have been reduced to two regimes. Now only the yardstick is in case of assets of whichever listed in the stock market. It may be shares, it may be mutual funds, or it may be units of the ट्रस्ट क्लियर यूनिट ऑफ द ट्रस्ट है अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स हैं या शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई और है एसेट्स हैं तो 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म के लिए 12 मंथ से ऊपर होगा 12 मंथ्स और उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म और सारे ऑल अदर एसेट्स दे विल बी ट्रीटेड द यार्डस्टिक विल बी 24 मंथ्स तो सो क्या है नाउ द 36 मंथ वाला फार्मूला खत्म तो केवल दो रिजीम So there has been the first major change in this year. अब इसमें दूसरी चीज क्या है टैक्स रेट्स तो फर्स्ट थिंग वाज रिडक्शन ऑफ 3 regimes to 2 regimes. अब दूसरी बात आई टैक्स रेट्स की बात की जो अभी तक व्हाट वाज द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट मैं एक एक बता रहा हूँ सबसे पहले तो कैपिटल मार्केट की थी जो शेयर मार्केट में इन केस यू आर होल्डिंग एन एसेट कैपिटल मार्केट एसेट फॉर मोर देन 12 मंथ्स तो वो लॉन्ग टर्म होती थी और लॉन्ग टर्म में उसका रेट होता था सिर्फ 10%। अगर कोई एसेट आप 12 महीने से कम होल्ड करते थे देन कैपिटल गेन होता था इट वाज 15%। तो कैपिटल गेन के केसेस में दो 10% और 15%। अब सब क्या होता था अगर लैंड एंड बिल्डिंग की मैटर में उसमें टू टैक्स की रेजिम्स थी नंबर 1 इन केस यू आर होल्डिंग इट फॉर शॉर्ट टर्म उनके लिए होता था नॉर्मल रेट में होता था नॉर्मल रेट और लॉन्ग टर्म जो होता था वो 20% होता था। अब साहब क्या इसमें देयर हैज बीन ए चेंज which was highly debated और उसके बाद there has been given some concession. I don't know whether it's a concession or it was an appeasement also कि what happened। अब देखिए साहब इसमें क्या हुआ कि जो 10% का शेयर मार्केट वाला लॉन्ग टर्म वाला जो लॉन्ग टर्म का शेयर मार्केट का 10% था अब गवर्नमेंट ने व्हाट दे हैव डन all the long term capital gains will be taxed at the rate of 12.5%। अब पहले देखिए अर्लियर शेयर के मार्केट में इट वाज 10% था और जो अदर एसेट्स के मामले में 20% था नाउ बिल्कुल एट फ्लैट it will be taxed at rate of 12.5%। Abhi I'll tell you what will be the impact of all these things। First I am narrating the process, after that I'll also discuss what is the impact, how it is going to impact our taxability। सबसे पहले तो ये हो गया टैक्स। शॉर्ट टर्म में ये हुआ कि शॉर्ट टर्म में अर्लियर फॉर द शेयर मार्केट इज व्हाट 15% होता था और अब उसको बढ़ा के 20% कर दिया गवर्नमेंट ने 20% कर दिया और अदर जो एसेट्स होती थी उनमें नॉर्मल टैक्स जो शॉर्ट टर्म में होता था जस्ट लाइक जो आपका स्लैब है नॉर्मली इट इज टैक्स एंड लाइफ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई जो मेजर इसमें जो प्रॉब्लम हुई जो लोगों का रिसेंटमेंट हुआ उसमें दो रिसेंटमेंट हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में लोग कहते थे इन केस ऑफ शेयर मार्केट दे वेयर पेइंग ओनली 10%। अब वो कह रहे नाउ दे हैव टू पे 12.5%। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा साहब देखिए स्मॉल इन्वेस्टर जो है और एक चीज वन थिंग आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर द इनिशियल एग्जम्पशन। अगर लॉन्ग टर्म हम पहले शेयर मार्केट की बात करते हैं कैपिटल मार्केट की जो भी एसेट थी अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो इनिशियली वी आर गेटिंग एन एग्जम्पशन अप टू 1 लाख मींस इन केस वी आर हैविंग ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन out of the capital market, out of the share market, up to 1 lakh there was a basic exemption limit, and beyond 1 lakh we are needed to pay 10%. Now what concession government has given in this budget is they have raised the limit from 1 lakh to 1.25 lakhs. Now what honorable minister is saying, he is saying we have covered all the medium investors। और उनके शब्दों में कि जो ज्यादा कमा रहे हैं अगर साहब हाई रिच हैं तो उनको देना चाहिए टैक्स। तो दिस इज उन्होंने कहा कि दिस इज द टैक्सेबिलिटी इज रेज्ड फ्रॉम 10% to 12.5% विद द इनिशियल एग्जम्पशन ऑफ 1 लाख। ठीक साहब इनका तो वो हो गया।
अब हम आते हैं दूसरी एसेट. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मली वी आर कंसर्न विद द लैंड एंड बिल्डिंग एंड अदर एसेट. ओके, नाउ लैंड एंड बिल्डिंग व्हाट वाज देयर? देयर वाज टू रिजीम, अगेन टू रिजीम्स वर वर्किंग. एक रिजीम ये कह रही थी कि जो हमारा रेट था लॉन्ग टर्म में इट वाज 20%. Long term it was 20%, but there was one advantage: we were getting the benefit of the indexation. All persons are valuers, we are all knowing. Before all the capital assets, कि अगर कोई भी हर लैंड एंड बिल्डिंग की नॉर्मली 1/4/2001 there was a grand treasury provision in case you have anybody has bought any land and building before 2001, तो 2001 का एक यार्डस्टिक उसको ग्रांड ट्रेजरिंग प्रोविजन था कि एक चार मीन्स अगर हम 1980 में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो नहीं साहब 1980 में ले रहे हैं तो हमें एक बेनिफिट होता था कि साहब 1/4/2001 से हमें कोई होता था और उस दिन से इंडेक्सेशन होता था. आज इंडेक्सेशन करीब 3.63 के आसपास पहुंचा हुआ है, इसके आसपास. तो होता क्या था, अगर हमारी एसेट्स बेच रहे हैं 1 करोड़ की और मान लीजिए हमारी 1 करोड़ की बेच रहे हैं, उस समय की एसेट की वैल्यू इट वाज in 2001 in case it was 10 lakhs. So we were getting the benefit of the indexation. So the cost of index cost was coming at around 30 lakhs or 33 lakhs. So we were needed to pay 20% on the differential amount only. Means sale value is 1 crore minus index cost. In case it is around coming at around 67 lakhs, then we were needed to pay tax only on 67 lakhs. अब क्या हो गया? इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज बीन टेकन ऑफ, इट हैज बीन टेकन आउट. तो अब क्या होगा? अगर हमारी वैल्यू, एक चीज जरूर उन्होंने की कि ग्रांड फादरिंग जो प्रोविजन है 2001 का, दे हैव कंटिन्यूड विद दिस ग्रांड फादरिंग प्रोविजन. मींस हमें बेनिफिट है अगर 2001 के पहले इन केस वी हैव बॉट एनी लैंड एंड बिल्डिंग एंड एसेट, वी कैन टेक द वैल्यू एज ऑन 1/4/2001. मींस अब लेकिन क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट तो नहीं था. अभी बाद में अभी हम आपको बताएंगे जो बाद में उन्होंने बजट में अमेंडमेंट किया. तो अब उन्होंने किया क्या था कि सर 2001 के बाद जो वैल्यू आपकी निकलती, इन केस योर वैल्यू वाज 10 lakhs, इंडेक्स के बाद 33 लाख आया और आज के दिन वी आर सेलिंग इट फॉर 1 करोड़. पुराने टैक्स रेट में 67 lakhs का 20%, जो दूसरा है 12.5, इसमें 90 lakhs का 12.5%. अब इन दोनों में फर्क क्या है? उसके बाद किया क्या है बजट में? ये तो बजट में प्रपोजल दिया, लेकिन बजट में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज यील्डेड टू द रिक्वेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल एंड दे हैव गिवन द ऑप्शन कि अगर जो एसेट आप बेच रहे हैं उनमें ऑप्शन दिया कि साहब जो आपको बेनिफिट कम आपको लगे वो आप जो है कर लीजिए. लेकिन एक चीज उन्होंने और दी कि न्यू रिजीम में ही आपको बेनिफिट मिलेगा, न्यू रिजीम में. अब एक चीज आप कैलकुलेट करें, मैंने काफी कैलकुलेट किया कि व्हाई वी शुड गो फॉर द इंडेक्सेशन एंड व्हाई वी शुड गो फॉर 12.5%. दोनों में फर्क है. मैंने जोड़ा, अगर आपकी बिल्डिंग लैंड की वैल्यू इट इज एप्रिशिएटिंग मोर देन 4 to 5 times, then 12.5% इज बेनिफिशियल फॉर अस. जो उसमें टैक्स हमें कम लगता है, इन केस आवर एसेट इज नॉट इंक्रीजिंग twice or thrice, then indexation is beneficial to us. अब इन दोनों में हमको देखना पड़ेगा, दोनों का फायदा हमें मिल सकता है कि इंडेक्सेशन में या उन दोनों में हम कौन सा वैल्यू ले सकते हैं. एक हमें गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दे दिया है. अब इसमें सब देखिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा. इससे एक नुकसान ये होने वाला है आगे. पहले अगर आपको याद होगा एक सेक्शन 54 था, उसमें ये कहता था कि इन केस अ पर्सन इज सेलिंग द रेजिडेंशियल हाउस एंड ही इज अगेन बाइंग अनदर रेजिडेंशियल हाउस, तो होता क्या था कि ही हैज टू इन्वेस्ट ओनली द कैपिटल गेन. कैपिटल गेन इंडेक्स के बाद जो निकलता तो हम उसको इन्वेस्ट कर दिया करते थे. वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टिंग इन रेजिडेंशियल हाउस. मींस मान लीजिए हमारे पास पहले से कोई मकान है रेजिडेंशियल, वो हम 1 करोड़ का बेच रहे हैं और हम नया मकान 2 करोड़ का खरीद रहे हैं. इंडेक्सेशन के बाद अगर हमें ज़्यादा मिलता है, फायदा मिलता है, तो इंडेक्स के बाद जो हमारा कैपिटल गेन निकलता है हमें सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना था जो पुराने प्रोविजन.
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अब वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट न होने की वजह से अब हमको पूरा पैसा वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा रेजिडेंशियल हाउस का, तो हमारा इनफ्लो के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा, इनफ्लो के ऊपर। दूसरा, शेयर मार्केट वालों के ऊपर जरूर फर्क पड़ा कि शेयर मार्केट वालों को लॉस जरूर हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के दिमाग में ये है कि दे आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी एंड व्हेन दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी दे शुड ऑफ कोर्स शेयर द मनी विद द टैक्सेशन अथॉरिटीज आल्सो। तो उन्होंने क्या किया, दे हैव इंक्रीज्ड द एसटीटी आल्सो, ऑल ट्रांजैक्शंस फ्यूचर पे भी बढ़ा दिया, ऑप्शन से बढ़ा दिए, सब पे एसटीटी भी बढ़ा दिया। वैसे अगर आप याद करिए तो व्हेन द STT provisions were first time introduced in the statute, it was promised to the investor that no capital gain will be levied on the investors. But government को तो आप जानते हैं कहती कुछ है, 2 साल बाद फिर पलट जाती है। The same happened in this case also. First they have levied and they have promised that no capital gain and no other tax will be levied in case you are paying STT. लेकिन अब क्या है, STT भी ले रहे हैं, कैपिटल गेन भी ले रहे हैं और STT का रेट भी बढ़ा दिया है। तो STT का रेट भी बढ़ा दिया और STT के रेट के बाद भी अब मजेदार चीज है, पहले जो इन्वेस्टर्स इन केस दे आर हैविंग द कैपिटल गेन्स तो उनको 10% देना पड़ता था, नाउ दे हैव टू पे 12.5% irrespective of the fact that they are further the STT rate has been increased, उसके बाद STT रेट भी फर्दर दे रहे हैं और वो कैपिटल गेन्स टैक्स भी ज्यादा दे रहे हैं, तो दोनों तरह से उनको ज्यादा देना पड़ रहा है। सेम हैपेंस विद द शॉर्ट टर्म आल्सो, एसटीटी भी ज्यादा देंगे और 15% की बजाय 20% दे रहे हैं। तो शेयर मार्केट वालों को दोनों तरफ से लॉस हुआ, लेकिन शेयर मार्केट वाले बोलते भी नहीं, वो इंडेक्स भी बढ़िया चल रहा है, म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट समझ रही, खूब लोगों की कमाई हो रही है, तो no person is coming forward to oppose all these things. Of course, there has been some resentment, but everybody is accepting it, and now the things are going to be absorbed. Now we are talking about the land and building. Land and building में अब क्वेश्चन आता है कि जो हमें पहले 10% मिल जाता था, 20% मिल जाता था इंडेक्सेशन पे, तो क्या हमारे लिए is it beneficial to take advantage of the 12.5% and how it is going to impact us? Yes, it is going to impact us. थोड़ा उन्होंने प्रोविजन दिया है कि you can have the option. अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं तो इसमें ऑप्शन है और उसमें देखिए ना 2 चीजें थी इसमें, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप कोई नया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें 2 शर्तें थी। एक तो ये कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई आपके पास है और आपके उसके बदले में आप उससे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मैंने आपसे कहा तो कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब इंडेक्सेशन नहीं है तो मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बदले और कोई एसेट बेच रहे हैं, गोल्ड बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं और उसके बदले हम मकान ले रहे हैं, जो कंडीशंस और भी हैं कि 2 से ज्यादा मकान नहीं होना चाहिए इस समय, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी दूसरा खरीद पाएंगे। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उसके हिसाब से उनको नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन रेजिडेंशियल हाउसेज वाले को थोड़ा उनको नुकसान जरूर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, दीज वेयर द जो प्रोविजंस मैंने आपको बताए, तो वही मोटा मोटी लेट मी समराइज ऑल दीज थिंग्स कि regimes earlier there were 3 regimes, now it has been reduced to 2 regimes. First, secondly, regime के अलावा टैक्सेशन रेट पहले अलग अलग रेट थे, पहले शेयर के मामले में 10% था, अदर लैंड एंड बिल्डिंग के मामले में 20% था, नाउ न 10% न 20%, दे हैव डिवाइडेड 12.5%। पहले लैंड एंड बिल्डिंग में इंडेक्सेशन वाज अलाउड, इंडेक्सेशन अभी भी उन्होंने कम करने के लिए कर दिया है, लेकिन अब 12.5% देगा। तो ये 2-3 चेंजेस कैपिटल गेन में चेंजेस हुए हैं। और जो कैपिटल मार्केट वाली एसेट्स, उसमें लिस्टेड इक्विटी, उसमें इक्विटी लिंक यूनिट्स और यूनिट्स जो है बिजनेस उसके वो उसमें अगर है तो उसके ऊपर रेट जो 12% है और 12 महीने का फॉर्मूला चलेगा और बाकी सारी एसेट्स पे 24%। So these were the provisions of the institute which has been changed. In case you have any question, I am open. I can give you a reply. श्रीवास्तव साहब कोई क्वेश्चन अगर है तो बाकी प्रोविजन जो मोटे मोटे थे मैंने आपको ये 2
प्रोविजंस मैंने आपको। हैदराबाद में हमारे बना हुआ तो हाँ, काफी अच्छी जानकारियां दी आपने। अब मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे इस पे, कुछ क्वेरीज हो उनकी तो सॉल्व करें। तो हमारे को कब पड़ेगा एक चीज हुआ भी है नई रिजीम में एग्जम्पशन कितना है? नई रिजीम में एग्जामिशन सिर्फ शेयर वालों के लिए 1.25 लाख, बाकी मतलब जो लैंड बिल्डिंग का नहीं है, और लैंड बिल्डिंग के लिए नहीं है। लैंड बिल्डिंग में कोई एग्जामिशन नहीं होता है। लैंड बिल्डिंग में आपको टैक्स देना पड़ेगा। शेयर वाले में 1.25 लाख तक आपको exemption। पहले था क्या लैंड बिल्डिंग? नहीं, लैंड बिल्डिंग में पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था और इसमें भी नहीं। देखिए मैं आपको और बताऊं, हम लोगों के दिमाग में अक्सर क्या होता है, अक्सर हम लोगों की भ्रांति रहती है, तो बार बार सरकार और सरकार के लोग कहते हैं कि बेसिक एग्जामिशन इज 7 लाख, लेकिन अब हमारे दिमाग में आता है, लेकिन दिस इज रॉन्ग नोशन। बेसिक एग्जामिशन लिमिट इज 3 लाख। इन केस वी आर हैविंग एनी कैपिटल गेन्स तो हम 7 लाख नहीं, उसमें हमको टैक्स देना पड़ेगा। ये बहुत भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, और बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग द बेसिक एग्जामिशन लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 7 lakhs and 7.5 lakhs है सब, लेकिन कैपिटल गेन्स के मामले में इन केस योर इनकम इज इंक्रीजिंग by increasing beyond 3 lakhs, then you have to pay the tax on the capital gains। अच्छा, इसमें एक चीज बताइए कि जैसे किसी ने अपनी जब डीड करी सेल डीड, तो उसमें कंस्ट्रक्शन की वैल्यू उसने ज़्यादा शो कर दी, ठीक है, तो वहाँ तो उसमें चलिए रेवेन्यू उसको पे करना पड़ गया, तो लेकिन क्या बाद में उसका बेनिफिट होता है? लिस्टिंग अच्छी लगी। देखिए साहब, इनकम टैक्स का सिस्टम क्या है कि जो वैल्यूएशन होता है, स्टैम्प वैल्यूएशन आर एक्चुअल व्हिचएवर इज हायर। अगर स्टैम्प वैल्यूएशन उसने लिया है तो वो लिया जाएगा मिनिमम। अगर मान लीजिए स्टैम्प वैल्यूएशन उसका इस समय आज का 1 करोड़ है, in case we are buying for 80 lakhs then 1 crore will be considered, in case we are buying for 1.25 crores तो वो जो ज्यादा होगा, सरकार अपने बेनिफिट के लिए लेती है, मिनिमम चार्ज है तो ज्यादा वाला। नहीं, इसमें ये बात थी ना कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपना जो सेल किया वो कर दिया, मतलब वो करने जा रहा है कि 50 lakhs में कर रहा है, मतलब जो आ रहा है, लेकिन उसने क्या किया कि उसको किसी ने गाइड किया कि ऐसा करिए आप इसमें कंस्ट्रक्शन वैल्यू और दिखा दीजिएगा था, तो उसने कंस्ट्रक्शन वैल्यू उसमें 20 लाख और डाल दी कि मैंने इसमें इम्प्रूवमेंट में इतना पैसा और खर्च किया, और उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो क्या बेनिफिट होगा क्या? देखिए साहब, ऐसा है ना, अब देखिए बगैर रिकॉर्ड्स नहीं, आप बेचने वाले की बात कर रहे हैं भाई, ज्यादा हाँ बेचने वाले की आप बात कर रहे हैं ना, तो बेचने वाले 30 lakhs हाउ ही शैल बी एबल टू प्रूव इट एंड सब्सटेंशिएट इट। देखिए 30 लाख गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं मान लेगी हमारा। देखिए होता क्या है, अगर मकान है तो विड्रॉल होने चाहिए, चलिए बिल्स नहीं, विड्रॉल है कहीं वैल्यूएशन तो खैर हो जाएगा, लेकिन विड्रॉल भी तो उसके अकाउंट से होनी चाहिए। हाउ ही शैल बी एबल टू सब्सटेंशिएट whether he has actually spent 30 lakhs or not? He has to give the evidences for it. In case the evidences are in hand, fine. Otherwise, tax authorities will not accept it. हाँ, एक चीज अगर बहुत पुराना है तो बात नहीं कहते हैं 20, 25, 30 साल पुरानी, अदरवाइज प्रूव कर। नहीं, जैसे इम्प्रूवमेंट पहले हम लोग लिख देते थे कि इतना हुआ, तो उसकी कोई लिमिट है कि इतना इम्प्रूवमेंट, मतलब कितने साल पहले के लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके पीछे का नहीं। देखिए साहब, इसमें देखिए जो आप कह रहे हैं, इट्स अ ग्रे एरिया, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया। इसमें वी शुड बी वेरी क्लियर। 2 चीजें, पहली चीज तो ये है कि जैसे इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट देखिए आज तक जो है आपको लेटेस्ट में 1 सितंबर से 6 ईयर के केस रीओपन हो सकते हैं, पहले 10 ईयर्स थे। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत हाई अमाउंट लेते हैं तो व्हाट इज एविडेंस, मानेंगे कैसे? मान लीजिए मकान है, आप सब लोग जानते हैं वैल्यू ऑफ स्ट्राइक, रिजनेबिलिटी प्लस उसकी इनकम क्या है, उसके विड्रॉल्स क्या है, तो ऑल दिस थिंग्स हैज टू बी कोरिलेटेड। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता उसकी इनकम है ही नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं, हम से लोग आए देन इट्स नॉट रिजनेबल, वो माना नहीं जाएगा। यस, देयर शुड बी रिजनेबिलिटी, बस ये बात है।
सर ये डेट का भी कुछ चक्कर है क्या सर? 23/7 और जो है मतलब उसके पहले उसके बाद का हाँ ये वो क्या है सर? सर उसके नहीं डेट का चक्कर नहीं, उसके बाद देखिए उस दिन तक जितने आप बेच रहे हो उसमें उसमें कानून लगेंगे पुराने वाले। जो बजट आया था इट वाज प्रेजेंटेड ऑन 23rd of July. So up to 23rd of July the old provisions will be applicable. And from 23rd to next day from उसे 23 तारीख से नए प्रोविजन लागू। मतलब वहां कहने का मकसद है अगर कोई मकान आप 22 जुलाई को बेच चुके हैं तो उस पे कैपिटल गेन के पुराने प्रोविजन 20% और वो लगे। बाकी उन्होंने ऑप्शन दिया अलग बात, लेकिन कट ऑफ डेट बिकॉज दैट वाज द डे व्हेन बजट वाज प्रेजेंटेड, तो इसलिए उसका पर्पस है। नहीं ये कोई बता रहा था कि भाई 23 जुलाई के बाद की कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है और वो सेल आउट अगर होगी तो उसके ऊपर जो है नया रेजिम ही लागू होगा सेकंड। हाँ यस सर, भाई देखिए उसके ऊपर तो नया रेजिम लागू होगा 12.5% वाला विदाउट इंडेक्सेशन भाई, और वो भी नई रेजिम में मिलेगा। हाँ मतलब कि वहां से जो है मतलब कि भाई जो ऑप्शन खत्म हो जाएगी, मतलब जो प्रॉपर्टीज हमने परचेज की है उसको सेल आउट अगर बाद में होगी तो भाई ये प्रोविजन खत्म है। हाँ ये प्रोविजन एक्चुअली पर्पस उन्होंने कहा, बहुत आपको देखा होगा पार्लियामेंट में बहुत डिबेट्स हुई, लीडर पोजीशंस बहुत चिल्ला है लोग, उन्होंने कहा गवर्नमेंट इस बार जरा, क्योंकि इस बार की गवर्नमेंट और पिछली बार की गवर्नमेंट में थोड़ा फर्क है, थोड़ा क्या बहुत फर्क है। पहले जो गवर्नमेंट आई थी, जो यही सेम गवर्नमेंट जब इसके पहले वाली रिजीम में बहुत मुश्किल से बात सुन रही थी, इस रिजीम में एक चीज जरूर है, अब आप देख रहे हैं गवर्नमेंट सिचुएशन इज वेरी क्लियर बिफोर ऑल ऑफ अस, तो दे आर कंसिडरेट, हर छोटी बातों को मान लेते हैं। अभी आज ही देखिए चेंज कर दिया, जो वो इंश्योरेंस होते थे उसका जीएसटी आज 18% से घटा के 5% कर दिया। तो काफी चीजें जो है कंसिडरेट होकर उनको सुननी पड़ रही है, बिकॉज दे आर नॉट इन मेजोरिटी, दे आर नॉट इन गुड मेजोरिटी। Yes, any other question? Any other member? Any query, Sanjay ji? Now I thank Rishi Shukla ji for your precious time which you gave to us for this nice lecture. We earned too much from your experience and other things. So I am very, very thankful to you for joining us. Thank you. Thank you. Equally, I am also thankful to all of you for just giving the opportunity. In case we are again getting the time, we'll meet again. And personally, you are all welcome to come to my office. Otherwise, we can also meet. Thanks a lot. Very thank Okay. you. Thank you, sir. Can I leave? Yes, you can. So we can go for any discussion on this matter. On this topic, we can discuss anything. Or any other matters. So no any query from anyone? And we got a lot of things from D.G. Shukla ji regarding this topic capital gain. Whatever it was before union budget and what it would be after 23/7. And now
no members are interested, so I will like to call K.K. Upadhyay ji to wind up the meeting and give the vote of thanks. धन्यवाद सुरासु जी। आज जैसे हम लोग जो मीटिंग थी, अपना डिस्कशंस हुआ कैपिटल गेन के जो है नए वाले रिजम को लेकर के, क्या चेंजेस है हमारी, क्या नए मतलब कि भाई प्रावधान दिए गए हैं गवर्नमेंट ने। शुक्ला जी का जो लेक्चर एक जो है दिया उन्होंने, वो काफ़ी हम लोगों के हेल्पफुल भी रहेगी। आगे कोई चीज़ को डाउट्स को करने के लिए भी हम लोग से बराबर उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पर कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों को अपनी चीज़ें पूरे एड्रेस किया। मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट श्री दास साहब का बहुत बहुत आभार कि वो जो है पेन लेकर के हमारे एसोसिएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट और टेक्निकल टीम के इंचार्ज श्री M.K. सुरासु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि भाई अपना जो है लेक्चर्स को कंडक्ट कराने में जो है मेहनत और अपनी जो है ताकत झोंकते हैं। और मैं सभी मेंबर्स जिन्होंने भाई इस मीटिंग को भाई ज्वाइन करके अपना ज्ञानवर्धन किया, हम लोगों के साथ में जो जुड़े, मैं सभी का पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। Thank you.